9 out of 70. Still, you could do better. See, Yeah. it's a good ratio. I would call it a good ratio because it's somewhere in the range of 50s, matlab around 66%, but still you could do better because you're the kind of student who can easily scope. Now, I know it is partially because of the fact that you did some of the chapters on your own. The next prelim, I hope you to get better if there would be another prelim. Will there be? No, highly doubtful because exams are starting from 4th May only, na? So, Yeah, and right now the conditions have only gotten worse. So there is a very doubtful scenario in Mumbai at least. Now and Faraday's law. sir, sorry, I'm so sorry, sir. Yeah, And they sent an answer key, which would you be, well, can we just discuss that during one class after the portion is over or something so I can understand? yeah. If we complete today's chapter, now what we can do is we can discuss that answer key or specific questions that you messed up on. Yeah. Okay, Okay. because very little, like 2 or 3 pages are only left. So most Yeah. probably we'll complete the study and we'll still have time. Now Faraday's first law, I'll read the law. It is pretty straightforward. The amount of substance liberated or deposited, so cathode or anode respectively, at a particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the solution. Now logically, this is true. You do not need to understand it scientifically because the electrons carrying are essentially ions. The charge being carried is essentially ions, and when you remove something, you're removing the ion. So the mass loss or the mass gain is the exact amount of current being flown through, right? This is also discussed mathematically. So work done is directly proportional to charge carried and charge as current into time, right? Putting that into the equation, W is equal to current into time, Z being the constant. It is known as electrochemical constant. For different solutions, it has different values. Okay. Now, electrochemical equivalent may be defined as the amount of substance liberated by the current of 1 ampere passed at 1 second. Now, Faraday's second law. Faraday's second law states that the same quantity of electricity passed through solutions of different electrolytes connected in CDs of masses of substances liberated is directly proportional to the equivalent masses. Now, this can be understood by this diagram right here. So, you have three different solutions and they are connected in a circuit, right, through a rheostat. Now, the weight of 1 and 2 is given as electropotential of 1 upon 2. Similarly, second is 2 and 2 upon 3, so E2 upon E3. The calculation is going to be the same. Now, since we are discussing ratios, W we have discussed is ZIT. We solved it previously. So, placing W against ZIT, I get E1 upon E2 is equal to Z1 upon Z2. IT gets cancelled because the total current is constant. So, Z1 upon Z2 is E1 upon E2. घूम फिर के law prove हुआ कि the amount of matter and the current passing is equivalent. Now Faraday's constant is also denoted as this. ये जो हम constant लेते हैं 1 Faraday का जो value है, that is nothing but Avogadro's number into charge of an electron. It is calculated to be 9,600 and 96,500 coulombs. It can be also denoted as Z is equal to E by F. Okay, different formulations for the same formula. We have did that E is equal to Z into F. We did it previously. It's just a variation of that. Now, equivalent mass upon Faraday's constant gives you this. So, equivalent mass being for that particular solution or solvent. We have discussed certain examples. We'll do one of them. A current of zero point 0.2 ampere passes through a solution of copper sulfate for 1 hour. Calculate the mass. Now, copper sulfate ka total atomic mass is 63.5. Valency is 2 for copper. Equivalent mass will be atomic mass upon valency. So 63.5 upon 2. Electrovalent, electrochemical equivalent will be Z upon F, right? So equivalent mass, Z is equal to E upon F, equivalent mass upon 96500. 96500 is gonna remain constant for all. Okay. Now, given this is just Z, okay, this is just the electrochemical constant. Now, given that the current is zero point 0.2 amperes and the time is 1 hour, so 1 hour is nothing but 60 minutes into 60 seconds. They've done that calculation. Faraday's first law states that W is equal to ZIT. Z you already found out. I is 0 0.2. Time is 3600. You'll get a value in grams because mass. Okay, this second example is discussing two different solutions.
The steps are pretty much the straightforward. One of them is gold, the other one is copper. So gold के लिए हम लोग ने equivalent mass निकाला, फिर copper के लिए, फिर W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. हमें W2 चाहिए, हमारे पास बाकी सब है, right? So what we'll do is we'll apply it here. So W into E upon E is 98.3 into 31.75 upon 65.67, which gives you a value of the mass. Now ये mass दिया हुआ है. They've also asked us to calculate the magnitude of current in amperes, not just the mass. So here what we are doing is the amount of copper deposited in the second cell is so and so. We found the deposition. Now W is equal to ZIT. इधर बाकी सब कुछ दिया हुआ है करंट के अलावा बाकी सब कुछ दिया हुआ है. You found the mass, right? Time we already know. Applying that into the equation, time for 5 hours, 5 into 60 into 60. I is equal to W upon ZT. Calculating for it, you get the value 0.68 0.8026 amps. Just hold on 1 minute, huh? Yes, sir. Other questions are similar, so I'm not gonna go in depth with them. This is just including the area, so volume of thickness involved. Everything else is the same thing. This is not a part, right? There's Done with the nothing part. on this page, and that is it. Now commercial cells. There's something in commercial cells. Nah, nothing. There's no part other than the this, right? Faraday's law is the end for Yes, sir. It's electrochem. the end. Okay, share the answer sheet that has been given by the college so that we can Yes, sir. discuss that as well. Yes, sir. I'll just remove that. Yes, sir. I've shared it with you. Yeah, I just received it. I'll open it up.
Sir, उसमें ना I don't think they've given the questions along with the answers. You've shared the question paper with me, na, though? Yeah, I shared it with you. Okay, then it should be on the Teams. I'll just check the name. Yeah. Is it name? Nah, it's not named as document 6. Okay. Reduce syllabus. Yeah, I got it. Chemistry 1 Prelim 2021. Okay. Yes, yes. Yeah. So I have both the question paper and the answer sheet here. Now, I'll have to check where I made the note for you. Okay, so where did the notes go? Hmm. 1C4 was the first one. 1C4. Order of basicity. This chapter we have completed or we are yet to complete? Oh, we just finished it after the exam. This was the first chapter we did. Okay, okay. So as you can where did the answer key go? As you can observe, it's first, tertiary, secondary, sorry, primary, secondary, primary, and tertiary. Do you know the reason behind it? Oh, inductive. It was the Inductive inductive effect. effect. It was the inductive effect, yes. So what ends up happening is the secondary has the maximum inductive effect, so it makes a strong base. And as you move from secondary to primary and lastly tertiary, because there is loss of hydrogen atoms, you end up losing inductive effect. See, they have discussed it. Wow, nice. Usually I get the answer sheets with no explanation whatsoever, so they have discussed it. So I'll discuss each point at a time. Now, due to inductive effect, tertiary, secondary, then primary, because they have tertiary has the least amount of hydrogen atoms and primary has the most. According to steric hindrance, it's primary, secondary, and tertiary, which makes it a weak base. Now, protonated amines also follow the primary, secondary, and tertiary. Keeping that in mind, secondary either ways has the maximum, whichever direction you go in. If you go primary, secondary, tertiary, or tertiary, secondary, and primary. So secondary comes first. Because now in both the cases, in three of the two cases, your primary gains priority over tertiary. So after secondary, it's gonna be primary and then lastly tertiary. After that, in between, do you have any questions? Because then I have directly question 5. Uh, no, sir. That way I don't have any questions. Where did you lose marks though? Which questions? Do you know that? No, sir. They've not. उन्होंने अभी तक corrected paper दिया नहीं है, so I'm not sure about that. Okay, okay. So question 5 पे jump करते हैं. Name for nitrogenous bases. Thymine, pyridine, adenine, guanine. Adenine, guanine, cytosine, and thymine. Yeah, animals के लिए और plants के लिए अलग अलग है, but that being the case, वो तो same क्या रहेगा. अच्छा, they have just screenshotted the test book and sent it to you. I was wondering इतना font अलग अलग क्यों है? most of the teachers have done this only, तो उसमें कुछ नया नहीं है. टीचर्स को भी बहुत मेहनत होता है यार. Don't don't question, बहुत tough Yeah, होता I'm not questioning them. Definitely no. है. Okay, after this, it was question 7 का second, and I gave you the idea कि लोन पेयर पे गड़बड़ किया आपने. हाँ, हाँ. ये see.
They have asked you to show the lone pair. हमेशा दिखाना है. Also उसका functions भी बोला था ना, thymine, guanine, cytosine का. हाँ वो आपने नहीं given लिखा you two था. functions of DNA. हाँ, वो आपने लिखा नहीं था शायद. लिखा था बट आपने बोला था कि थोड़ा और लिखना चाहिए था because then it would have been better ऐसा आपने बोला था. या ओके. चलो, ये मेरा तो मैंने जो लिखा है वो है. सम्स में कहाँ पे कौन सा डाउट है बोलो, because I'm pretty sure डाउट तो होगा. सम्स में सर एक सेकंड मुझे ना चेक करना पड़ेगा. सम्स में सर आई वाज एबल टू सॉल्व इट, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आपके साथ हुआ नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट टू श्योर अबाउट दोस सम्स. ओके, आज रेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हो गया है, तो क्वेश्चन I'll pull up the electrochemistry questions. ओके. This is not electrochem. That is solution. This Solution for is chemical kinetics. this is kinetics. Both of them are kinetics. Both of First them order. are kinetics. This one. Molar conductivity. Now this is question A, right? I'll keep the answer open so that I don't have to pull it up on the board. Now the question is as such: 0.05 molar. So some moles of NaOH offered a resistance of some ohms in a conductivity cell. If the constant is X, determine the molar conductivity. So what do we know? सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें पता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे सोल्यूशन का. दूसरा हमें पता है उसका रेजिस्टेंस क्या है. तीसरा हमें पता है कांस्टेंट कंडक्टेंस क्या है. अब हमें पता क्या करना है? हमें मोलर Molar. कंडक्टिव फाइंड आउट करना है. Now solution is as such: your molar conductivity is 1 upon resistance into your cell constant. Cell constant has been given, resistance have been given. You get cell uh, conductivity K. Now relation between conductivity and molar conductivity is 1000 K upon C, C being concentration, molar concentration. Your conductivity will already found and concentration has been given in the question. तो खाली दो फॉर्मूला लगाना था, पहला ये, दूसरा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई गेस सेम है. ये क्वेश्चन 9 में भी इट्स या दिस इज आल्सो इट, दिस इज आल्सो सेम. नाउ दोनों सेम चैप्टर का बट दोनों अलग अलग है. कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड. ये फैराडेज फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है. मास deposited or lost when 2 amps of current is passed through a solution for 15 minutes. Now W is equal to ZIT. 1F is this much. आपको मोलार मास हर चीज का बाय हार्ट करना होगा, या आपको दिया जाएगा either ways, डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा आपका स्कूल या कॉलेज है ना. W is equal to ZIT. हमें W फाइंड आउट करना है. Our electrochemical constant is nothing but equivalent substance upon 96500. निकाला. Good. I दिया हुआ है, T दिया हुआ है. For 15 minutes, 15 into 60, वो लोग ने T I मल्टीप्लाई किया, आप IT करोगे, ठीक है. 2 into 900 just to clarify. And your total value comes out to be 2.015 grams. And lastly, the resistance of a conductivity cell of 0.001 molar KCl at 298 Kelvin is 1500 ohms. सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? इस टाइम आपको के भी फाइंड आउट करना है और मोलर कंडक्टेंस भी फाइंड आउट करना है, बट आपको कंडक्टिविटी दे दिया गया है एट द सर्टेन टेम्परेचर. फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है. सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट के इनटू आर. हमने किया है बी, हम पहले हम बी फाइंड के फाइंड आउट कर रहे थे, तो इट वाज बी अपॉन आर. अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आया, तो के इनटू आर, यू गॉट द वैल्यू फॉर सेल कांस्टेंट. चलो एक चीज हट गया रास्ते से. द सेकेंड पार्ट वाज टू फाइंड molar conductivity. Why haven't they solved for molar conductivity? They've just left it for you. Molar conductivity formula ये रहा. 1000 into kappa by K upon kappa by C. Concentration दिया हुआ है 0.001. Okay, and K we just found. Yeah. K has also been given. Good. नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है तीनों. इसमें मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाले इसमें लिगैंड कौन है और सेंट्रल मेटल आयन कौन है? लिगैंड विल बी द
एक सेकंड पहले एक सेकंड मैं रुकता हूँ। हाँ, पहले हाँ एक सेकेंड थोड़ा सोचना पहले। पड़ेगा हाँ. Okay, so I think chromium will be the central metal atom or ion, and the ligands will be amine wala and aqua, which is ammonium wala और water का जो ligands होगा. Guess. अमोनियम एंड वाटर, ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन है। सेकंड वाले इसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन फेरेट तो आयन है इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम ऑब्वियसली आयोनाइजेशन स्फीयर में, और साइनो आपका इंटरनल में। Coordination. देखो, टीचर से कुछ सीखो, ऐसे पेपर भरते हैं बिल्कुल ऐसे ही। कुछ नहीं आएगा इतना बड़ा लिख देना, ठीक है। Now this is all complex coordination compounds, ये फर्स्ट चैप्टर है। बैलेंस द रिएक्शन, सल्फाइड और ये मेटालर्जी। हाँ सर, उसमें पूछना था कि इन दैट आई एम नॉट मतलब मुझे वो अच्छे से याद नहीं हो रहा है, लाइक फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड ऑल सिल्वर एंड ऑल उन्होंने अलग अलग पूरे प्रोसेसेस दिए जिसमें रिएक्शंस और सब दिए, तो मुझे वो इतना बड़ा बड़ा याद नहीं हो पा रहा है एक साथ, तो क्या करूँ मैं उसके लिए? हर एक मेटालर्जी के चैप्टर में देयर आर सर्टेन ब्रॉड ग्रुप। सबसे पहले है आपका मेटल, ठीक है। दूसरा उसके प्रोसेस का नाम, थर्ड प्रोसेस के स्टेप्स, और चौथा उसके रिएक्शंस। नाउ आपको कैसे लिखना है पता है, ये समझो आपने टेबल बनाया, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल है, ठीक है। नाउ आपका मेटल का नाम एक ही रो कंस्टिट्यूट करता है और प्रोसेस का नाम एक ही रो कंस्टिट्यूट करता है। बट जैसे ही आप प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में जाओगे, कंट्रोल सर, जैसे ही आप प्रोसेस के स्टेप्स में जाओगे तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसा एक टेबल बना दो और हर एक स्टेप का रिएक्शन उसके साइड टू साइड लिख दो। उसका लिटरेचर एक वर्ड मत लिखो, लिटरेचर का मतलब होता है स्टेप वर्ड्स में डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोस्टिंग है तो रोस्टिंग वर्ड्स में डिस्कस किया हुआ रहता है, वो सब मत लिखो। जस्ट राइट डाउन द प्रोसेस स्टेप, अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम है, अगर उसमें कुछ है जिससे जो लिखने जैसा है, विच इज नॉट डिस्कस्ड इन द रिएक्शन। Other than that, write it in the process step and then the reaction itself. Now ये आप चाहिए तो एक word document बना दो। मैं तो क्या करता था, I used to create flow charts. I used to create flow charts of the entire process. So what ended up happening है, मेरा कॉपर एक्सट्रैक्शन का एक फ्लो चार्ट बनता था और उसका एक डायग्राम या दो डायग्राम, अभी जैसे एल्यूमिनियम में दो है, एल्यूमिनियम में दो अलग अलग डायग्राम्स है। एक तो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और पहले ये था, पहले वो क्रशिंग वाला जो पार्ट है जो तुम लोग के टेक्स्ट बुक से हटा दिया है, वो पार्ट एक अलग डायग्राम है था। प्रेशराइजिंग अंडर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज, वो वाला एक डायग्राम था। तो आई हैड अ फ्लो चार्ट अलोंग विद दोस टू डायग्राम्स टू द साइड। तो आई हैड एवरीथिंग इन वन A4 साइज डॉक्यूमेंट। तो मेरे को चाहिए मैं प्रिंट करके ले लूँ, मेरे को चाहिए मैं ऐसे ही रखूँ, इट्स अप टू यू। अभी मेरा कैसा, आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर्स, आई लव वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, तो मेरा हर चीज कंप्यूटर्स पे ज्यादा है। यू कैन गेट दैट बाय द आइडिया, क्योंकि ज्यादा टीचर्स दो मॉनिटर और एक एक्स्ट्रा वेबकैम नहीं लगाते। इट्स लॉजिकल, आई एम टेक savvy लाइक दैट, तो आई हैव दिस हिंट। बहुत सारे टीचर्स एक्चुअली आर राइट कि नोटिंग इट डाउन वर्क्स। तो अगर आपको ट्री डायग्राम्स बनाना या फ्लो चार्ट्स बनाना नहीं आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, या प्रेजेंटेशंस बनाना नहीं आता है, यू कैन जस्ट गो ओल्ड फैशन, एक बुक पेन लो, स्टेप्स को ऐसा बॉक्स करो, स्टेप का नाम उसका रिएक्शन का नाम, खत्म। एक मेटल एक पेज पे, दूसरा मेटल दूसरे पेज पे। डोंट गो ऑल द वे ऑफ स्टडिंग द एंटायर टेक्स्ट बुक, जस्ट नोट डाउन द स्टेप्स, क्योंकि एग्जाम में भी आप वही लिखोगे, मेटल का नाम, उसके प्रोसेसेस। सर अभी किसी किसी, हाँ 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 सर, आपका बीच में वॉइस चला गया था सर। अच्छा, वो हो सकता है थोड़ा इशू रहा। ना जनरली अभी कैसा है कि आप एग्जाम में भी, अभी मैं आपका आंसर शीट फुल करता हूँ, एक सेकंड। हाँ नाउ वेयर आंसर की, और ये क्वेश्चन नंबर क्या था, एक्सट्रैक्शन 15 ना। क्वेश्चन 15। आई गो डाउन टू 15।
अभी देखो, सबसे पहले ओर का नाम दिया, मतलब मेटल या मेटालिक ओर। अभी सबका अगर ओर का नाम दिया तो ऐड एक्स्ट्रा कॉलम। एक्सट्रैक्शन स्टेप्स देखो, स्टेप्स डिस्कस किया, स्टेप्स डिस्कस करते वक्त उनका रिएक्शंस डिस्कस हो रहा है, राइट? नाउ इफ आई वे टू नोट इट डाउन एज सच, मैं क्या करता, मेरा मेटल, अभी एल्यूमिनियम में देयर आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, मेरे को जितना याद होता, अभी एक ही है, पहले दो था। You had your electrolytic reductions of Bayer's process and Hall's Herold processes, ऐसा अलग अलग प्रोसेसेस था। तो प्रोसेसेस, और अगर उस प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स है, आयोनिक रिएक्शंस है, कैथोडिक रिएक्शंस, एनोडिक रिएक्शंस, तो मैं उनको इंडिविजुअल स्टेप्स बना देता था, या तो एक स्टेप के अंदर ए एंड बी बना देता था। तो आयोनिक रिएक्शंस, कैथोडिक एंड एनोडिक, ऐसा। दैट गेव मी अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया। और है ना, ऐसा फ्लो चार्ट है ना, एक फ्लो रहता है ना, आपका वर्क फ्लो बना रहेगा। If you have, since you're kids, you're not used to working, so you don't understand the importance of what we call the workflow. आप जब कोई काम करने के आदी हो जाते हो ना, आपको वो काम नॉन अनकॉन्शियसली भी रहता है दिमाग में। दैट्स कॉल्ड हैविंग अ वर्क फ्लो। अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मेरा आपके साथ एक स्क्रीन शेयर होना है, एक साइड पे मेरे को आपके ऊपर नजर रखना है, अगर मेरे को बोर्ड यूज करना है तो मेरे को बोर्ड यूज करना है, मेरा एक वर्क फ्लो है, तो मेरा काम फोकस्ड रहता है। Now, how do I remember the last time which topics were done? I'll show you. सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे। So this is what we call maintaining a workflow, a certain workflow. वर्कफ्लो हम इसलिए करते हैं जिससे हम एक आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। आप ये हर चैप्टर के साथ कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है, मेटालर्जी बीइंग वन ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कोई भी प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है, लिस्ट इट डाउन, start broadening the concept. When you start broadening the concept, अभी एक ही चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स भी है, तो हर एक टॉपिक में एक या दो ज्यादा से सब टॉपिक्स होते हैं। हर एक टॉपिक के अंदर इन योर वन टॉपिक देयर आर एट मोस्ट वन और टू सब टॉपिक्स। अगर नेम रिएक्शंस वाले जैसे ऑर्गेनिक के, तो देयर आर सेवरल नेम रिएक्शंस। दैट वाज द सेकंड पॉइंट आई वाज अबाउट टू डिस्कस। किधर गया? ऊपर नीचे जाना होगा, राइट? इधर। नेम रिएक्शन 3 मार्क अकेले, अकेले 3 मार्क। दूसरा एक्सप्लेन, ये नेम रिएक्शन बेस्ड है, 2 मार्क, 5 मार्क खाली नेम रिएक्शंस को गया। ऐसी चीजें है ना, वंस यू मेक नोट्स ऑफ इट, स्पेसिफिकली डिफरेंट नोट्स ऑफ इट, देन इट्स गुड। नाउ मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लिख के करो, बिकॉज दे आर लेजी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आप लोग बहुत लेजी हो। यू इवन इफ यू राइट, यू डोंट पे अटेंशन टू द बुक। आप वो बुक लेके बैठोगे नहीं, यू विल जस्ट लीव इट असाइड। टेक्स्ट बुक में मार्किंग करोगे, टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ने लगता है, जैसे जैसे अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, रीडिंग पे ज्यादा फोकस जाता नहीं। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू है, आप पूरा एक बना लो, एक अलग से सेपरेट नोट्स बना लो। नाउ मेरे लिए वो जरूरी था कि मैं वो टाइप आउट करके प्रिंट कर लूं, क्योंकि वो मेरा प्रिंटेड बुकलेट मेरे टेक्स्ट बुक के आधे साइज का होता था, बट उसमें पूरा टेक्स्ट बुक कवर्ड होता था, नो टॉपिक वाज लेफ्ट। तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल था, और मेरा 12th का स्टार्ट से ये सब चालू था। अभी आपका एंड आ गया है, तो आई सजेस्ट जो टॉपिक्स आपको खाली टफ लगता है उनका ऐसा फ्लो प्रोसेस बनाओ, और वो फ्लो प्रोसेस को पढ़ो। पूरा टेक्स्ट बुक मत रटते बैठो, क्योंकि अगर 4 मेटल्स भी है, उसमें हर एक में अगर एक या दो प्रोसेसेस भी है, तो आराम से 6 से 8 अलग अलग प्रोसेसेस हो जाता है, along with the simple steps as crushing, रोस्टिंग, ये सारे प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है, उनका भी रिएक्शन दिखाना होता है, तो इट बिकम्स वेरी टफ। बेटर इट वुड बी कि आप पूरा का पूरा एक साथ एक फ्लो प्रोसेस बना के पढ़ो। यू आर लकी दैट यू हैव बीन आस्क्ड एज वर्ड रिएक्शन, बट जनरली वर्ड रिएक्शन पूछते नहीं। ये टीचर ने आपको मार्क्स देने के लिए 3 वर्ड रिएक्शन दिए, नेम रिएक्शन दिए, बट नेम्स नहीं दिए जाते। दे विल गिव यू द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, गिव द रिएक्शन इन बिटवीन, फिल द रिएक्शन लाइक दीज। ये टाइप के जो रिएक्शन है, अभी देखो ना, ये अकेले 5 मार्क का है, 2 5 मार्क, वेराज यहाँ पे 5 5 मार्क के थे। 2 रीजंस, और ये इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस का, ज्यादातर ऑर्गेनिक में यही पार्ट रिएक्शंस गेन करता है। हाँ देखो ना, टोटल 10 मार्क, कितना अच्छा है ये भी। और मैं भी बेसिकली ये 5 मार्क का वही क्वेश्चन है, ABCDE फाइंड आउट करना है, बस वर्ड्स में दिया हुआ है आपको, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। एंड लास्ट में कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने बोला है, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो काइनेटिक्स हो गया। काइनेटिक्स हमने नहीं कंप्लीट किया है ना अभी तक। No, sir. We have to start. Kind of.
ये डिसोसिएशन कांस्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, देन विल आप मेरे को काइनेटिक्स सेंड कर देना, क्योंकि वी स्टिल हैव अबाउट half an hour and change actually, so we can cover at least some part of the kinetics. Where did it go? Here it is. Yeah, question 18. Now time is 10%, time where 10% of the reactant is left. Conductivity is so and so. If the molar conductance and infinite dilution is so, what is the dissociation constant? This is question 18, right? Question, yeah. Question 18. आप वो पहला वाला लिख रहे हो, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, ये हाँ रहा. हाँ Given K is 7.896, okay, your concentration of molar concentration is 0.00241. Molar conductivity will be K into M by M. Value nikala. Degree of decision will be molar conductivity upon standard molar conductivity. Standard molar conductivity भी हमें दिया हुआ है. Okay. Now dissociation constant will be concentration into alpha upon 1 minus alpha. Straightforward calculation. अगर formulas याद है तो it's pretty straightforward. Formula नहीं याद है तो I can't help you with that. ओके Send me kinetics next. सर We'll come. उसमें बिकॉज आई हैव नॉट येट क्लिक द आई हैव नॉट येट मेड अ पीडीएफ, तो बिकॉज दैट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू डू, तो अच्छा अच्छा. आई वाज थिंकिंग मैंने आपको वो एक वर्कशीट भेजा था जो हमारी टीचर ने दिया था हमें फॉर कन्वर्जन, कैन वी जस्ट डिस्कस दैट ऑल्सो वंस, बिकॉज मुझे कन्वर्जन में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। एक second. Let me just open it up. It was named as what? Document जस्ट 6. या Document. I या got it. I would have written there that I would just Ah, it is an organic conversion chart. I yeah. got it. Oh, सारा general reactions, name step up, step down reactions. हाँ, ये पूरा का पूरा एक साथ ही डिस्कस किया हुआ है. तो इसमें अभी यही question. करो ना सर कि अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू भी जाऊँ, आप क्या सजेस्ट करोगे? See, since our teachers essentially, I think so, covered all the chapters, all the reactions as well. And even the subtopics like pK, increasing, decreasing, electronegativity, electrophilic substitution, everything has been discussed. This should be more than enough. अगर आपने ये शीट कर लिया, I'm pretty sure organic पूरा हो गया. ओके ऑर्गेनिक में से और कोई कुछ पूछता नहीं है, खाली रिएक्शन पूछते हैं. Even she has given remarks in sort कि क्या अगर कोई नेम है या if it's creating a strong oxidation or reduction, everything has been discussed. So this is more than enough. You don't need anything else. Now step up conversions वो conversions होते हैं जब आप या तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हो या तो आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ा रहे हो. दैट इज स्टेप अप. स्टेप डाउन तब होता है जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रिड्यूस होगा. की कन्वर्जन्स, हाँ मैंने बोला था ना अराउंड 40-50 तो आपके टेक्स्ट बुक में है 150 में से. सो शी हैज गिवन अराउंड 43 ऑफ दोस. 43 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलग. लिथियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एसिडिक सोल्यूशन, group in alcohol, group out carboxylic acid. If you can't remember, just remember as alcohol to carboxylic acid. यहाँ पे दिया भी है secondary alcohol to carboxylic acid. उतना भी याद रखोगे, that should be more than enough. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता है क्या है, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है. तो यू आर गोइंग द ऑपोजिट वे, गोइंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक योर एसिड टू अल्कोहल. secondary alcohol. Just a minute, I'll turn on the fan. My dog had turned off the fan. Dog had turned off the fan. Yeah. How? He put his paw up and scratched on it. That's how he usually does it. Which breed you have, sir? He's a Doberman. Wow. Now,
कॉपर यूज किया या क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया, दे टेंड टू पुल अवे हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज देम टू वाटर, so it will be dehydrogenation. PCl5 SOCl2, you're going from, these are chlorinating agents. so यहाँ पे रिमार्क में आप लिख सकते हो क्लोरिनेटिंग एजेंट्स, अगर नहीं कभी कंफ्यूजन हुआ तो किसी भी रिएक्शन में दे विल क्लोरिनेट, OH को Cl में कन्वर्ट करेंगे ना, Cl2 डाला तो ऑब्वियसली क्लोरिनेशन होगा, एक्वेस NaOH या KOH डाला तो आपका OH ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज रिप्लेसमेंट है, फ्री रेडिकल मतलब प्लस या माइनस चार्ज रिप्लेसमेंट है। KCN X to CN जा रहा है, स्टेप अप, या फिर इन अदर टर्म स्टेप अप, क्योंकि ये कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ता है, बट दिस इज ऑल्सो साइनाइड ग्रुप, ओके, साइनाइड एंड NC आइसोसाइनाइड, कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों साइनाइड और आइसोसाइनाइड यहाँ पे रिमार्क्स में लिख लो, वरना बाद में कंफ्यूजन होएगा। ये क्या फिजिकल है, मतलब शीट दिया हुआ है या दिस इज जस्ट अ PDF? So she sent the PDF, I printed it. मैंने प्रिंट करके निकाल दिया उसका। तो यहाँ पे लिख लेना, ऊपर हाँ। साइनाइड और नीचे आइसोसाइनाइड। ये जनरली है ना, आपको क्वेश्चन में कैसा आएगा पता है, प्रिपेयर सो एंड सो आइसोसाइनाइड या साइनाइड, आपको रिएजेंट नहीं दिया जाता है, तो जब ऐसा होगा तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्कोहलिक KOH यूज किया, स्टाइव्स रूल, ये जो STZF लिखा हुआ है वो स्टाइव्स रूल है, एंड डिहाइड्रोहालोजिनेशन फॉलो होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है, नीचे डिस्कस करेंगे। HBr दिया हुआ है, मार्कोनिकॉव्स रूल, PD बसोफोर, रोजेनमंड, ये लिखा है ना PD BSO4, इसको बोलते हैं PD बसोफोर, ठीक है, और कुछ नहीं बोलते हम, PD बसोफोर बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है उसका। इट इज अ रोजेनमंड रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं उसको। मर्क्यूरी और HCl यूज किया, क्लेमेंसन। अमोनिया एंड हीट यूज किया, यू विल गेट अमोनियम आयंस। देन ब्रोमीन यूज किया, ब्रोमिनेशन होगा, हॉफमैन रिएजेंट है। नाइट्रिक एसिड यूज किया, यहाँ पे देखो मैम ने दिया हुआ है, HNO2 आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, यू प्रोड्यूस इट बाय एडिंग NaNO2 to HCl, you get HNO2 and you replace NH2 to OH, you're using ये क्या था, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, कार्बाइलमाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। या P2O5 यूज किया, आपका CONH2 gets converted to NC, डिहाइड्रेशन है, ऑल्सो यूर गेटिंग साइनाइड ग्रुप, ऊपर आइसोसाइनाइड था। खाली एसिडिफिकेशन यूज किया, ऑब्वियसली यू विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। OH माइनस यूज किया, यू आर इंक्रीजिंग बेसिसिटी, तो NH2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड ग्रुप गिव्स यू CH2NH2, ये रिडक्शन है। HBG किसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है आपके मैम ने? हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की। बाप रे, सच इतना छोटा शॉर्ट फॉर्म, एक्चुअली हम लोग याद रखते थे वोलार्ड ज़ेलेंस्की या वोलार्ड्स रिएक्शन करके, आई डिडंट इवन रिमेंबर द फुल नेम इन ड्यूरिंग माय इयर्स, क्योंकि वो पूरा नाम कोई पूछता ही नहीं था कभी, आज तक कभी आया नहीं, उसमें बस रिएक्शन लेकिन आ गया, तो वोलार्ड सिंथेसिस ये लिखना है, चलो हो गया ऐसा ना। ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या थे, एलिफैटिक थे, फर्स्ट वाले सारे एलिफैटिक ग्रुप के लिए थे, ये एरोमेटिक ग्रुप के लिए हो जाएंगे, तो अगर कंफ्यूजन रहेगा ऊपर लिख लेना एलिफैटिक। एरोमेटिक ग्रुप में आप आयन यूज करोगे, कोई हैलोजन यूज करोगे, डार्क में रखोगे तो हैलोजिनेशन होगा। CH3 यूज किया, CH3Cl यूज किया तो आपका अल्काइलेशन होगा, COCl यूज किया तो असाइलेशन होगा, क्यों, CO refers to the acyl group, COX COCl is referred to the acyl group। नाइट्रेशन के लिए HNO3 यूज करेंगे, H2SO4 के लिए सल्फोनेशन, KMNO4 के लिए ऑक्सीडेशन। अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, KMNO4 इज कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज करते जाएगा टिल यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वैसा नहीं चाहिए तो क्रोमियम क्लोराइड यूज करो, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करो, ईटार्ड रिएक्शन। एंटीमनी इन HCl और आयरन इन HCl गिव्स यू रिडक्शन, तो आपका NH2 प्रोड्यूस होगा, ये याद रखना। और ये जो आपका दिया है ना ग्रुप्स, H मतलब आपका ऑर्थो ग्रुप, यानी टॉप पे ऑर्थो पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये जो भी सारे रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वो सारे ऑर्थो पे हो रहे हैं, मेटा पैरा नहीं देख रहे हम लोग, ऑर्थो ही देख रहे हैं।
डायazotization इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हाँ बहुत कॉमन है, ये पूछता नहीं है कोई जल्दी। डायazotization सैंडमेयर गॉटमैन या गॉटमैन कॉच, ये तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, Na2HCl, NH2 NH2Cl। ये ये चेन रिएक्शन है एक्चुअली। अमाइन से आप डायazो में गए, डायazो से हैलोजन जाना है तो सेकंड गॉटमैन रहेगा, अगर आपको साइनाइड जाना है तो सैंडमेयर रहेगा। अगर आपको आयोडाइड जाना है तो Ki यूज करेंगे, एफ जाना है तो फ्लोराइड यूज करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करना है तो you'll use either some hydrogenating agent like phosphoric acid or an alcohol। वाटर यूज किया तो OH ऐड होगा, नाइट्रेट यूज किया तो NO2 ऐड होगा। अब ये लॉजिकल हो गया, यहाँ से सारे ये हो गए। लास्ट वाला ये दो जो है ना, OH और NH2, कपलिंग रिएक्शंस है। आपका C6H5 अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ OH और ट्रिपल बॉन्ड है, hence the coupling reaction। Grignard reagent, एनी वन ऑफ द बिलो प्लस वाटर। वाटर की चाहिए आपका OH के लिए, उसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं चाहिए। प्राइमरी चाहिए CHO विथ हाइड्रोजन, सेकेंडरी चाहिए RCHO, टर्शरी चाहिए RCOR रहेगा तो OH ऐड होगा। CO2 यूज किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CN यूज किया तो COR बनेगा, विच कैन गो बैक टू बीइंग टू यूज प्रोड्यूस अ टर्शरी अल्कोहल। एंड H2O यूज किया जस्ट इटसेल्फ तो अल्केन प्रोड्यूस होगा। ये इम्पोर्टेंट है। This is very important. Shit, my ear started fading. Okay. Now, yeah. Ortho directing groups and meta directing groups। ortho para directing groups मतलब या तो O पे रहेगा या तो P पे रहेगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अलग होता है, तो आपके उनके हर बॉन्ड मेटा पे आएंगे। अभी ज्यादातर क्या होता है पता है, लोग क्या गड़बड़ करते हैं अभी सब, जो आप क्लोरीनेशन रिएक्शन कर रहे हो तो आपका क्लोरीन कहाँ कहाँ पे अटैच होना है ना, ये कोई नहीं ध्यान देता है। इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा पोजिशन पे आएगा। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स खाली ऑर्थो पोजिशन पे आएगा। तो इवन इफ इट्स थरोली लेट्स जस्ट कॉल इट फिनोलिक, मतलब खाली ऑर्थो पे नहीं है तो बाकी दोनों पैरास पे भी आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, अभी ऊपर जो रिएक्शंस किया है उनमें कौन से ऑर्थो या पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होंगे, वो ये चार होंगे। मेटा पे कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ये आपकी मैम ने वापस से वही सेम चीज डिस्कस किया जो मैंने ऑर्गेनिक के टाइम पे डिस्कस किया था। आपका प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी या टर्शरी कीटोन्स बनता है। अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडेशन एसिड्स, माइल्ड ऑक्सीडेशन एसिड, नो एसिड्स। अल्कोहल एसिड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन 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 ऑफ अल्कोहल्स। मतलब बेसिकली दिस वर्कशीट इज लाइक कम्प्लीटली, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा ये अच्छे से किया तो। आई डोंट थिंक सो, इसके अलावा आपको कुछ पेपर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर हिस्सा इसमें कवर हो जाता। उसके अलावा अगर कुछ बचा तो दैट वुड बी प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोई स्पेसिफिक कंपाउंड है, वैसे रिएक्शंस रहेंगे, लैब प्रोसेसेस वगैरह रहेंगे, कोई टेस्ट हाँ रहेगा specific, तो वो क्योंकि यहाँ पे आई सी ओनली 2 टेस्ट। आई डोंट नो कि आपके कैंसल सिलेबस में खाली 2 ही टेस्ट बचते हैं या ज्यादा बचते हैं। नो वी हैव अ लॉट, वी हैव लूकस, हिंसबर्ग, सिल्वर नाइट्रेट, फिर टॉलेंस, फेलिंग्स, वो सब है हमारे इसमें। हाँ, तो यहाँ पे खाली आई आइसोसाइनाइड और हिंसबर्ग दिया हुआ है, यानी लूकस और हिंसबर्ग दिया हुआ है, तो उसके अलावा बाकी सारे जो टेस्ट है वो कर लूंगी। आई ओ, वी हैव द पीडीएफ एंड ऑल फॉर दैट। एक सेकेंड, मैम ने टेस्ट के नाम दिए हैं। She hasn't given the actual processes of the test, so you'll have to study for the process. या So what you can do is you can have extra like empty sheets attached to it, और distinction test के reactions वगैरह details वगैरह जो यहाँ पे खाली topic names दिए हुए हैं वो आप लिख के रख सकते हो। आई स्टिल वंडर लोग कैसे दिन भर पीसी के सामने बैठ जाता है।
My eyes are literally paining right now. Eyes and ears both. Same. My ears start hurting actually more than eyes. Yeah. Now what else is left? कोई doubt है? Electrochem हो चुका है हमारा. हाँ. We have done P block and we did one more chapter, right? E and F block we did. Yeah. फिर nitrogen का किया chemical. So we are Nitrogen. left with chemical kinetics only. फिर portion technically gets over because the rest I've done it with Anjumis. So Okay, that's great to hear. yeah. What I can do is we still have like how much time we have? Like 10 minutes or so. What I'll do Yeah. is I'll pull up few questions of kinetics along with the sorry kinetics बोल रहा हूँ electrochem along with the solution we'll discuss them. Okay. सर एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अभी ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तो आई शुड डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग बोर्ड पेपर्स और विल यू बी कीपिंग like unit wise tests or something like that? I don't think so. You have enough time to keep Unit uh, wise tests. break it apart. Yeah, that's very rare because let's presume we have like 2 or 3 more sessions to complete the last chapter. Even after that, it becomes very difficult to cover each one of them. Okay, so directly I can just start solving papers then. Start with the papers. Yeah, pull up the question. Just a minute. Okay, we'll directly jump into short types. Two half-cell reactions for electrochemical equations are given below. One is magnesium, the other one is antimony or tin. Sorry, tin. Construct the redox equation from the two half and predict which favors the formation. This was in the All India paper for 2009. ये important questions का एक अच्छा ये है sort of. But this is CBSE though. Now the reaction can be represented at the anode and cathode as so. So you have your SN2 to SN4 and 2 electrons. It is plus 0.15 and this is plus 1.15. Plus 0.15, 1.15. Now obviously आपका एक half जो आपका reduction half है that is ahead of the oxidation half. Now since this is less and this is more आपके reduction half या cathode पे will be your magnesium. Why it is highlighting the entire thing? See, this is adding electrons, right? Yeah. On the other end, it is losing electrons.
ई सेल विल बी कैथोड माइनस एनोड। वो लोग नेट सेल तो हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स हटा दो ना, दे हैव मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑन ईच साइड बिकॉज बैलेंस नहीं था, एक में 2 था दूसरे में 5 था, तो 10 10 हो गया, कैंसिल ऑफ हो गया। योर एंटायर सेल रिएक्शंस बिकम्स दिस विथ वाटर। और कैथोड माइनस एनोड दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हो स्ट्रेट अवे, एंड इट विल पॉजिटिव वैल्यू विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इट विल, मतलब ये कैसा हो गया, ये गैल्वेनिक हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक हो गया, अगर फेवर कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देन गैल्वेनिक। गुड। Now, given the standard potential of the metals for potassium, silver, mercury, manganese, and chromium and iron are given, arrange those in increasing order of reducing power. सबसे पहला पॉजिटिव 0.8, फिर पॉजिटिव में कोई और है नहीं 0.34, देन उसके बाद में आयरन 0.44, फिर क्रोमियम, 0.74, मैग्नीशियम एंड 2.37, 2.9, प्लस टू माइनस मतलब जाना है, the order is as such. Now two half reactions of the electrochemical cell are, ये किया ना अभी हम लोग ने, वापस से क्यों दिया है? Okay. Chemistry of corrosion, ये explain the नहीं है। phenomena, नहीं है ना? Kc and delta G Gibbs energy and equilibrium constant निकालना बोला है for the following reaction, ये है ना, हम लोग ने किया ही है। हाँ हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी एंड केसी इज देयर। ये आपको ई सेल दिया हुआ है 1.05 है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा जी इज नेगेटिव एन एफ ई, एफ कॉन्स्टेंट है, ई जीरो हमें दिया हुआ है, एन वी ऑलरेडी नो इज 2, प्लेसिंग दैट इनटू द इक्वेशन यू गेट सो एंड सो वैल्यूज। अभी वो लोग ने कन्वर्जन किया है, दे हैव कन्वर्टेड इट टू 2.2065 kilojoules per mole. You can keep it either ways. R is 8.314, temperature is 298 kelvins. There is no temperature discussed, so you'll keep it constant, standard temperature pressure. Log K is equal to delta G 2.303 RT. Anti log तो आप कैलकुलेटर पे करोगे तो मेरा करना वेस्ट होगा. The value is as. Now two half reactions of an electrochemical cell. अरे यार वापस से वही सेम चीज. Then the values are same. हर दो क्वेश्चन के बाद में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन. Moving on, express the relation among cell constant, resistance of the solution and conductivity of the solution. How is molar conductivity of a solution related to the conductivity? Okay, ये खाली formulas discuss करने बोला है. This is simple. This is, we can do this. Oh, देखो log ऐसे किया करते थे पहले के जमाने में, ऐसे log हुआ करता था, ठीक है, हमें ऐसे values निकालने होते थे. अभी तो क्या है, यहाँ पे आप डालोगे log नेगेटिव सॉरी 0.95:10⁻⁻1 हो गया, लिख दो आंसर. Now zinc rod dipped in 0.1 molar solution of ZnSO4. The salt is 95% dissociated at dilution of 298 kelvin. Calculate the electrode potential. आपको values दिया हुआ already. Right? Obviously Zn2 plus dissociation हो रहा है तो Zn2 plus is becoming Zn. Nernst equation use किया, Zn2 plus is nothing but E0 0.591 upon 2 log to the base 10 of Zn2. Formula constants apply किया हुआ है. Now we already know that it is 95% of the actual concentration. So we straight away put it as 95 upon 100 into 0.1. This is the value for Zn2 plus. Zn के लिए 100% था, Zn2 plus के लिए 95% है. Placing that into the equation, Zn2 plus छोड़ के बाकी सारे values तो you can get straight away. 2 ones are 2 0.002 4s are values you'll get. 0.76 दिया हुआ है. ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है, खाली समझना है डाइल्यूशन में कितना जाएगा और परसेंटेज कितना निकालना. वो परसेंटेज वाला अच्छा था, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये ज्यादातर कैसा परसेंटेज यू हैव टू फाइंड. पीपल मिस्टेक देमसेल्व्स, वो लोग डायरेक्टली 95 लिख देते हैं बिकॉज दे प्रेज्यूम कि हम पूरा सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले ले तो उसको 100 रखता है, बट आपको वो 95% के हिसाब से डालना होता है, नॉट 95 होल. वो मिस्टेक लोग करते हैं. ऑल्सो मोलारिटी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बट वैल्यू इज मोल में, सो देयर इज नो कन्वर्जन हियर.
स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कोलराशेस लॉ हाँ ये क्वेश्चन है ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है स्टेट कोलराशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन logically because the space between the ions increases but in terms of Kohlrash's law it's very different फ्यूल सेल्स तो आपको नहीं अभी हटा दिया है मोलर कंडक्टिविटी है बट इट्स सिंपल आई वोंट गो इन डेप्थ विद दिस इज दैट एक्चुअली इजी मुझे केमिकल काइनेटिक्स ही थोड़ा ट्रिकी लग रहा था सो दैट यू कैन डिस्कस या नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लेंगे एंड विल गो इन डेप्थ विद दैट नॉट एन इशू anyways we'll wrap up for today because this sheet is very long there are like 80 90 questions in the sheet from all the way year 1996 all the way to 2020 all those questions have been put up together so ओके I'll leave the rest up to you by the next session before next session send me the last chemical kinetics send it over I'll refer it beforehand and I'll pull up some important notes if necessary okay we'll wrap up for today समझा आज का कुछ डाउट है नहीं सर आई अंडरस्टूड we'll wrap up there ओके bye bye बाय सर bye